So good afternoon, everyone. So there are many students who have been reaching me out, especially regarding filling of the forms of prelims 2025. And there are two new things they have introduced. One is choice of preference services, and second is the section on achievements, hobbies, all these things, right? So I will be discussing briefly about it, and after that we will proceed to the class. Okay. So just give me a minute. तो एक बात तो ये है कि you should start filling the form as soon as possible. The reason is that good centers will be available if you form the form timely. उसका रीज़न क्या है कि जो भी मेन सिटीज़ होते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल एलोकेट योर सेंटर इन द मेन सिटी बेस्ड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज, एंड लेटर इफ दे फाइंड दैट देयर मेन सेंटर्स आर फुल, देन दे विल गो टू द अदर सेंटर्स. सो जो रेगुलर सेंटर्स होते हैं वो अच्छे सेंटर्स होते हैं. सपोज यू आर फिलिंग द सेंटर इन से गुरुग्राम, so initially you will get good schools regular where the regular exams are held, and if you don't fill timely then you will get some other schools which may not be very regular in conducting the exams. So you have to fill the form as soon as possible. Even inside the city you will get better school, first come first services. और एक सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है कि फॉर्म फिल करके आप टेंशन फ्री हो गए, है ना. अदरवाइज तो हमारे इंडियंस की एक बहुत अच्छी हैबिट है, लीव एवरीथिंग टू द लास्ट चांस, और लास्ट डे में वेबसाइट को हैंग कर दो और फिर एक्सटेंशन की डिमांड करो. कम से कम हज़ारों स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट डे वाले दिन फॉर्म नहीं भर पाते और वो यूपीएससी के पास पहुंचते हैं कि सर प्लीज़ एक्सटेंड द डेट. ये समझ में नहीं आता कि इतनी लंबी विंडो दे दी, उसके बाद भी उनको एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है. और वो आप भी हो सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं कोई दूसरी जगह से लोग आते हैं, मतलब यू कैन बी वन ऑफ देम. वो कब होगा? जब आप धीरे धीरे काम करोगे कि एक बार फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, फिर अगली बार देखा रहे ये सर्टिफिकेट नहीं है, अरे आधार मैच नहीं कर रहा, एड्रेस मैच नहीं कर रहा, ये वो. तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप पहले से ही अवेयर रहें, अलर्ट रहें, तो ज़्यादा अच्छा होगा. एंड स्पेशली अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, आपको रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का और ज़्यादा रोल हो जाता है. Okay, so before I start, if you have any specific query, you can please type in the chat box. I have already got the queries from many people. You have filled the Google form, and major questions are coming about these two things: service preferences and price hobby section, right? So we will be discussing these two things.
First, about the service preferences. So first of all, service preferences, this is the most preferred service preference list. First is IAS, second is IFS, third is IPS. However, there is a small difference based on the personal choice. So because some people prefer IFS, so if you prefer IFS, then you can go for first choice. If you prefer IPS, then you can go for IPS as the first choice. So depending upon your own personal choice, you can make these changes in the top 3, right? Secondly, one more question comes, sir, will we be allowed to change the service preferences? So yes, you will be allowed to do the changes in the service preferences after the mains result is over. Okay, so you will get more chance to get it rectified in case you want to change. But still, I will say do it properly from now itself. Okay, because why to leave anything to the last moment again, right? So टॉप 3 सर्विस में आपके ये आते ही हैं IAS, IFS, IPS. और 4th नंबर सर्विस पे nowadays this is IRS. Okay, many female candidates they choose IRS as the first choice because this service is having the good location, peace of mind, no political interruption. Yeah? And IRS IT, it used to be actually 4th choice earlier, but nowadays it is shifted to 6th number. Some people may fill it number 5 also, right? So IRS IT is your personal choice. Suppose you are from the CA background, you may enjoy it better. Even for the CA background people, audit is also equally good. So IRS IT and auditing, it is your choice. You can go for any of these. And after this, this year they have again brought back these 3 services. Basically, in 2024 attempt, they add only one service, IRMS. But in this year, again, they have divided this into 3 services, the traffic, the accounts, and the personnel. So they have brought back the old system. In earlier, I think in 2018-19, they used to have railway traffic service, railway account service, railway personnel service. Now, they merged the IRMS into one service. And then again, they have divided into 3 services, right? So this is the coming back of these 3 services, and out of these 3 services, traffic is considered to be better. Some people will also prefer accounts in place of traffic. Again, it is your personal choice, but traffic is better because traffic is basically the final administrative authority of the railway. Then personnel is just like HR, right? So traffic accounts personnel, यहाँ पर traffic accounts में variation हो सकता है. After this comes these account service, civil account service, then defense account service, defense estate service. तो ये दोनों डिफेंस वाली सर्विसेज हैं, अच्छी सर्विस हैं ये भी. देन ट्रेड सर्विस, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, पोस्ट ऑफिस सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, प्रोटेक्शन, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड अदर्स. तो ये आपकी चॉइस बन जाती है, ये एक प्रिफर्ड चॉइस है. नाउ यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस चॉइस. So you already know the purpose is service allocation, right? Why they have introduced this at the earlier stage? Probably they want to fasten the process. After declaration of result, they want to conduct the interview faster. So probably they want people to think in advance, right? So the purpose of the UPSC is to fasten the entire cycle of UPSC. That's why they are doing all these things in the initial stage itself, right? And next question comes, sir, will there be question on the choice of service in the interview? तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस बहुत ही रेयर केस में आते हैं अबाउट द चॉइस ऑफ सर्विस. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल रेयरली आस्क यू व्हाई यू हैव चोजन IPS एज द फर्स्ट सर्विस, राइट? और सेकेंडली, सर सपोज आई हैव चोजन IPS एज द फर्स्ट सर्विस और IRS एज द फर्स्ट सर्विस, सो विल आई बी asked the question on police? Will I be asked the question on revenue? Answer is no, because you have not got any training. They will not expect that you should be expert of police matters. आपकी choice है, preference है, selection के बाद आपकी training होगी, then they can
assume that you should be expert in this, but they cannot expect that you will be expert even before you have joined any service, right? So don't have any fear regarding the type of question they will be asking regarding the services. Take it very like lightly, but be very careful about the service choice, okay? और अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो सब भगवान की मर्जी है कौन सी सर्विस मिलेगी, मतलब कि बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं सर्विस सिलेक्शन, सर्विस अलॉटमेंट में. आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी, और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी और प्रेफरेंस ऑफ अदर कैंडिडेट्स, है ना, वो भी मैटर करती है. तो फिर भी स्टिल वी शुड प्रोवाइड बेस्ट चॉइसेस सो दैट लेटर ऑन वी डोंट हैव एनी रिग्रेट. ओके, सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस डॉक्यूमेंट. यू कैन यूज दिस डॉक्यूमेंट एज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस. सारे नहीं, सारे आपको सारी सर्विस डालनी है उसमें. हाँ जी, कंप्लीट लिस्ट ऑफ सर्विसेज, 24 सर्विसेज, सबको रैंक देना है. और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आई वांट ओनली 3 सर्विसेज, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, बट देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अदर सर्विसेज. सपोज यू चूज IAS, IFS, IPS, and suppose you get a rank on which these 3 services are not available, but IRS is available, then you will not be allocated the service. So better you go and allocate, you choose all the services. ठीक है, तो ये मैंने रेडीमेड आपको बना के दे दिया है. नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट. इन ऑन यूट्यूब यू विल फाइंड लॉट मैनी अदर वीडियोस. ठीक है, तो देखिए कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. दिस इज ऑल्सो नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, like I have analyzed the depth of at least 500 people in last few years, and this year also I am taking lot of interviews. अभी मॉक इंटरव्यू चल ही रहे हैं डेली बेसिस पर. मैं 4-5 लोगों के मॉक इंटरव्यूज ले रहा हूँ मैं. ठीक है, तो उनके सबके डेफ मैं गो थ्रू करता हूँ, और प्लस माई ऑन एक्सपीरियंस, राइट. तो उन सब चीज़ों के बेसिस पर ये सर्विस प्रेफरेंस मैंने आपको बताई है. ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई सर्विस प्रेफरेंस, आपको पर्सनली कहीं पे प्रॉब्लम है, सर मुझे रेलवे ज्वाइन नहीं करनी है, तो ठीक है उसको पीछे डाल दो. इसीलिए तो प्रेफरेंस है ना, क्योंकि वन पर्सन टू पर्सन इट में वेरी. ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और होगी चेंज करने की, तो तब चेंज कर देना. लेकिन अभी मेरा मानना यह है कि अभी फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए. इसके चक्कर में ज़्यादा अटकिए मत, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले ऑलरेडी इंटरव्यू के टाइम पे भरते हुए आए हैं हम, तो ऐसे कोई नई चीज़ नहीं पूछी इन्होंने. क्वेश्चन, सर फॉर IPS व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर द गर्ल्स. ये चेक कर लो यार, मुझे तो नहीं पता, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं उसमें. ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड सेक्शन, यानी कि जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी हॉबी एंड ऑल, राइट. सो ये मैंने काफ़ी सारे सैंपल्स दिए हैं. ये मैंने काफ़ी सारे सैंपल्स दिए हैं जो कि अलग अलग कैंडिडेट्स के डैफ में से मैंने निकाल के दिए हैं आपको. डैफ मतलब समझते हो, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो पहले मेंस के बाद भरा जाता था और अब आपको अभी भरने के लिए दिया जा रहा है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, तो ये आई थिंक ये सेक्शन होने चाहिए आपके प्रीलिम्स के फॉर्म में, जितना मुझे लग रहा है. इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था, कैन यू एनीवन प्लीज कंफर्म मी कि यही सेक्शंस हैं. किसी ने अगर फॉर्म ओपन किया हो तो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से अगर किसी ने फॉर्म ट्राई किया हो तो क्या यही सेक्शंस हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं. ओके अंशिका, यही है, कंफर्म कर दिया इन्होंने. तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी टोटल 4 टाइटल्स दिए हुए इन्होंने. तो 4 टाइटल्स में आपको क्या क्या फिलअप करना है. फर्स्ट इज प्राइज, मेडल्स, स्कॉलरशिप्स, राइट. तो प्राइज, मेडल्स, स्कॉलरशिप में आपको जिस चीज़ के लिए भी आपको प्राइज मिला हो, मेडल मिला हो, स्कॉलरशिप मिला हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं. यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इफ़ आई हैव रिसीव्ड द प्राइज बट आई डिडंट गेट एनी रिटन डॉक्यूमेंटेशन, आई डोंट हैव, सपोज मुझे मिल तो गया था लेकिन अभी मिसप्लेस हो गया. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज दे विल नॉट चेक ऑल दीज थिंग्स इन द इंटरव्यू. उनका पर्पस इसके बेसिस पर आपको प्रायोरिटाइज करना नहीं है. आपको कोई वो क्रेडिट नहीं देने वाले कि आपको ये प्राइज मिल गया तो भाई आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिल गया आपको. इनका पर्पस है सिर्फ और सिर्फ आपसे डिस्कशन करना. वो
आपसे ये इन्फॉर्मेशन इसलिए लेना चाहते हैं, वो इंटरव्यू में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि आपने अगर हमसे डिस्कशन करना है तो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं, ताकि वहाँ से वो बात को, टॉपिक को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो इनका पर्पस आपकी प्रायोरिटाइजेशन करना नहीं है। इसके बेसिस पर अगर आपने फर्स्ट प्राइज भी जीते हैं ना, ऑल इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उससे आपको कोई रैंक पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो सिर्फ डिस्कशन होगा इस टॉपिक के बेसिस पर। इनका पर्पस किसी भी तरह से रिजेक्शन वाला नहीं है कि भाई आपके पास ये जो प्राइज है या स्कॉलरशिप है उसका सर्टिफिकेट होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो अच्छा है, रखिए उसको। ठीक है, पीस ऑफ माइंड, अपने मन की संतुष्टि के लिए, है ना। सेकंड है स्पोर्ट्स, एनसीसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर मैं तो कभी स्पोर्ट्स खेले ही नहीं, हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स की कल्चर तो है नहीं। ठीक है, तो सर अब यहाँ पे कॉलम दी हुई है, ब्लैंक छोड़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है कि हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर उतनी नहीं है, हमारे यहाँ पे जगह ही नहीं है खेलने की। पूरी मिडिल क्लास आईआईटी सीए सब पे लगे पड़े हैं। अभी वन बाय वन। सेकंड में कोई क्वेरी आपकी? अच्छा, स्पोर्ट्स में मिलेगा फोर्थ, मिलेगा फोर्थ। हाँ हाँ, क्या? ताइवांडो, कराटे। कराटे स्पोर्ट्स में आता है क्या? ये चेक करना पड़ेगा आपको। स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स में अगर आता है तो, और स्पोर्ट्स में आता है, ये कैसे चेक करोगे? गूगल पे जाओ और वहां पर भी क्रेडिबल सोर्स होनी चाहिए। यानी कि ये क्या ओलंपिक का पार्ट है? ओलंपिक का पार्ट है, फिर तो स्पोर्ट्स ही है। आप चेक कीजिए, देखो ये पर्सनल आपकी वो है ना, आपका खुद का स्पोर्ट्स है ना ये, तो उनको क्या पता होगा? उनको तो अपना पता हो, इतना ही बहुत है। मतलब ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सबकी, क्योंकि सारे यूनिक स्पोर्ट्स होते हैं, आपके यूनिक यहाँ पर एंट्रीज होंगी। ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सबकी एंट्रीज यूनिक होंगी। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रिसर्च करो, आप उसको ढूंढो और तब जाके इसको फिलअप करो। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में आता है पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शन, लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कूल और कॉलेज। ठीक है, तो काफी लोग जो जॉब वगैरह करके आते हैं या इंटर्नशिप करके आते हैं या कुछ और चीजें, तो अगर वो आपकी स्कूल या कॉलेज से संबंधित है, सपोज आपने इंटर्नशिप की और इंटर्नशिप वो आपकी कॉलेज करिकुलम का पार्ट है, तो आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें डाल सकते हो। या फिर मतलब जैसे यहां पे डाला हुआ है हेड गर्ल ऑफ द स्कूल इन 11th क्लास, है ना। लेकिन अगर सपोज आपने जॉब की और जॉब में यानी कि आप अपनी कंपनी के ऑफिस में आपने कोई पोजीशन ऑफ लीडरशिप है, तो वो उसको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज का पार्ट नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 डी, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबीज। ठीक है, तो यहां पर एक्टिविटीज और इंटरेस्ट की बात हो रही है। एक्टिविटीज का मतलब है कि जो आप प्रैक्टिस करते हो, तो यानी कि अगर आपने उस चीज को कंटिन्यू किया है तो ही यहां पे लिखिएगा, या फिर अभी से कंटिन्यू कर सकते हो। सपोज आप पेंटिंग करते हुए, पेंटिंग ऐसी चीज यहां पर आपकी इंटरेस्ट है। ठीक है, तो एक्टिविटीज को तब माना जाएगा जब आप अभी भी पेंटिंग कर रहे हो। ठीक है, अभी का मतलब है कि अभी तो इंटरव्यू आपका तकरीबन कम से कम 6 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद कर रहा हूँ, 1 साल बाद होगा। तो अब से प्रैक्टिस कर लो स्टार्ट, अगर आपको यहाँ पे डालना है तो। ठीक है, और इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। यू मे नॉट बी परफॉर्मिंग इट रेगुलरली, यू मे नॉट बी डीपली इनटू इट, बट आपका इंटरेस्ट है, आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर ये एग्जांपल्स हैं, मैंने काफी सारे डेफ्स के एग्जांपल लिए हुए हैं। यहां पर सबसे मेन पॉइंट होता है आर्टिकुलेशन। सबसे मेन पॉइंट होता है आर्टिकुलेशन, कि कोई भी चीज को आप उस तरह से प्रेजेंट करो कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा इसमें एग्जैक्टली मेरा स्टेटस क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट, अब क्रिकेट कुछ लोग खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग देखना पसंद करते हैं, और कुछ लोग खेलते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में डिस्कस करना पसंद करते हैं। तो यू हैव टू राइट दैट वेरी क्लियरली, प्लेइंग क्रिकेट एट द लोकल लेवल, और सपोज यू आर स्टेट लेवल प्लेयर, प्लेड क्रिकेट एट स्टेट लेवल, और सपोज यू जस्ट वॉच इट,
but you watch it very occasionally, not regularly. तो you can write watching cricket occasionally. मतलब कि आपको एग्जैक्ट कम्युनिकेट करना है कि आपका उस टॉपिक के साथ में क्या रिलेशन है. ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया क्रिकेट कोमा सेकंड एक्टिविटी ना, तो क्रिकेट लिखने से काम नहीं चलेगा. आपको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि जितना आप स्पेसिफिक बनोगे उतना ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा आपसे. अगर आप उसको ब्रॉडर वे में लिखोगे तो उतने ही ब्रॉडर क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं. अगर आपने लिखा वॉचिंग क्रिकेट तो आपसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछेंगे. अगर प्लेइंग क्रिकेट तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, एज ए प्लेयर या एज ए ऑडियंस. ठीक है, तो उस तरह से आप यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है. और ये जो डैफ है ये शिवानी गुप्ता का है, उनके 200 मार्क्स आए थे. अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इज स्कॉलरशिप फॉर डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन 12th ग्रेड, अवार्ड फॉर द स्कूल टॉपर इन इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड. ठीक है, तो स्कूल वाले प्राइज मेडल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे. स्पोर्ट्स में देखिए ब्रॉन्ज मेडल इन इंटर स्कूल खो खो कॉम्पिटिशन. तो इन्होंने एग्जैक्टली बताया कि क्या इनका स्पोर्ट्स में है, ऐसा नहीं लिखा खो खो. ठीक है, तो अब इनसे इतनी उम्मीद की जाएगी कि भाई इन्होंने कोई कंपटीशन में ये मेडल जीता था. इसका जरूरी मतलब ये नहीं कि आज भी खो खो खेलती हो. ठीक है, पोजीशन स्प्रेडेड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन एज ए पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्लब. अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि आई हैव बीन लीडर ओवर देयर, आई वॉज टीम लीडर, ऐसा कुछ नहीं लिखा. इन्होंने बोला कि मैंने स्टूडेंट क्लब के मेंबर की तरह वहां पर अवेयरनेस फैलाई है. ठीक है, तो ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि 200 मार्क्स वाले डेफ है ये, यानी कि टॉप मोस्ट मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स जो होते हैं. तो यानी कि अगर बोर्ड की बात करो तो बोर्ड ने इसको भी एक्सेप्ट किया है डिस्टिंक्शन लीडरशिप की तरह. ठीक है, और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या लिखा हुआ है, टर्निंग सर्कल्स इनटू सेरेनिटी विद मंडला आर्ट. अब ये जो इन्होंने लिखा तो मंडला आर्ट इनसे बनवाया गया इंटरव्यू में. उनको बोला कि आप मंडला आर्ट बनाओ और साथ साथ में आंसर भी देते रहो जो हम पूछ रहे हैं आपसे, और उन्होंने बना दिया. 200 मार्क्स मिल गए. ठीक है, और यह है ट्रैश फॉर्मेशन. तो कुछ यूनिक वर्ड है. अब इनको ज्यादा पता होगा क्या, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. हाँ ठीक है, तो ये 1-to-1 है. आपकी खुद की लाइफ को आपको एनालाइज करना होगा. उसी तरह से ये देखिए, ट्रॉफी फॉर द सिक्योरिंग सेकंड पोजीशन इन क्लास 12th स्ट्रीम. अगर आप स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट में या कॉलेज में या स्टेट में, नेशनल में, कहीं पे भी आपका कोई नंबर आया है आप उसको लिखिए इसमें. प्लेइंग ब्लिट्स एंड रैपिड चेस, लेड ए न्यू प्रोडक्ट इन ये अच्छा लेड ए न्यू प्रोडक्ट लाइन इन एडिबल ऑयल. तो ये इनकी ऑफिस का है. वैसे तो मैंने इनको मना किया था लेकिन इन्होंने भर दिया था पहले ही. अब इनका इंटरव्यू है तो क्या करें, वी कांट डू मच अबाउट इट, है ना. बट इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि स्कूल कॉलेज में नहीं है ये, राइट. देन स्पाई एंड एस्पियोनेज बुक रीडिंग. तो बुक रीडिंग इन्होंने ये नहीं लिखा कि बुक रीडिंग, इन्होंने लिखा है कौन सी बुक पढ़ते हैं. स्पाई एंड एस्पियोनेज स्पेसिफिक कैटेगरी लिखी है इन्होंने. काइट फ्लाइंग, ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका. ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर करूंगा तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं. आपको यूज कैसे करना है, आप अपने पहले सब कुछ भूल जाइए, पहले अपनी आपको एनालाइज कीजिए कि मेरे पास क्या अवेलेबल है, और फिर सिमिलर एक्टिविटीज जिस भी आइटम यहाँ पर फिलअप है, जिस भी फॉर्म में यहाँ पे फिलअप है, वहाँ पे देखिए कि उन्होंने किस तरह से लैंग्वेज यूज की हुई है. तो फिर आप अपनी लैंग्वेज को उस तरह से इंप्रूव कर सकते हो. अब यहाँ पे देखिए इनके स्पोर्ट्स में कुछ है ही नहीं, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो अवार्ड एंड स्कॉलरशिप बाय ICAI फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 6 इन CA. तो ये इनकी CA में रैंक आई थी तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. ये है जयंत गर्ग का ये वो है. स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं है. पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन में हाउस कैप्टन और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर में साइकिलिंग. अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा इनके पास लिखने के लिए है नहीं, तो इन्होंने फिर भी उस चीज़ को मैनेज किया अच्छे से. आर यू गेटिंग? मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि जो आर्ट्स वाले होते हैं ना उनके तो इतना ज़्यादा भरा हुआ होता है ना ये आर्ट्स वालों के पास में है. और स्पेशली अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से है तो इतनी सारी आइटम्स होती हैं. अभी मैं आजकल इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो मैं तो मतलब खुद ही मुझे लगता है कि 1 घंटा तो मैं इसी के ऊपर निकाल दूंगा, इतनी सारी आइटम्स होती हैं.
ठीक है, तो कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों की नॉर्मली कम एक्टिविटीज होती हैं जो मैंने देखा है, और उसमें भी दिल्ली वालों की ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। अब ये देखिए, ये देखो, ये है डेंसली फील्ड है, ये है ना, ये किसका है, आईआईएम में किसी का है ना, ग्लोबल अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस एट मास्टर कार्ड इंडिया, ब्लेजर स्कॉलर अवार्ड फॉर बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज किसका है ये याद नहीं आ रहा अभी मुझे। देखो मैंने बोला था ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का है ये देख लो ये हंसराज कॉलेज और फिर आईआईएम में, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट है। सिक्योर्ड 3,50,000 ग्रांट फ्रॉम DU टू स्टडी हाउ पेरेंट्स चूज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। स्क्वैश टीम गोल्ड मेडल विनर एट इंटर IIM स्पोर्ट्स मीट। फाउंडर एंड प्रेसिडेंट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी हंसराज कॉलेज। प्रोजेक्ट हेड लेखनी विंडो एम्पावरमेंट एंड एक्टर्स हंसराज कॉलेज, प्लेइंग स्क्वैश एंड बैडमिंटन, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। ठीक है, तो काफ़ी रिच है। लेकिन अब देखो, अब ये काफ़ी रिच डेफ है और ये काफ़ी बेचारा पुअर है ना सो डिस्पाइट दैट नो इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यू मार्क्स। नहीं जज करेंगे, इसे जज नहीं करेंगे, ठीक है। बट आपको ऑनेस्ट होना है, ऑनेस्ट होना है, आपको ये नहीं सोचना कि भाई मुझे इसको फिलअप करना है पूरा कंप्लीट। अब देखो ये भी देखो DU, मैंने बोला था ना DU वाले का, DU वालों का ऐसे मिलेगा, पूरा फिलअप मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी कमेटीज इनके यहाँ बनी हुई होती हैं, इतनी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखो, ये है आपका, ये IIM रोहतक और हंसराज कॉलेज, देखो DU वाले हैं। ये तो देखते समझ जाना चाहिए DU है जैसे ही पूरा फिलअप हो ना। फ्यूजन कुकिंग, ये है माधव अग्रवाल का 205 मार्क्स, माधव अग्रवाल का है ये 205 मार्क्स, इनका CA का बैकग्राउंड है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें देखिए, गोल्ड मेडल इन एकेडमिक्स नारसी मुंजी कॉलेज 16, अर्नड सिल्वर बैज इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल, प्लेड स्टेट लेवल हॉकी फॉर द इंदौर टीम, ट्रेजरर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल एट कॉलेज, हेड बॉय ऑफ स्कूल, वॉलंटियरिंग फॉर ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस विद NGO। इस तरह की एक्टिविटीज, अगर आपका डेफ पुअर है, मतलब अगर आपको लगता है कि कुछ किया नहीं है हमने, इस तरह के सिर्फ पढ़ते पढ़ते रह गए, तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर लो अगले कुछ दिनों में, मतलब अगले 1 साल के अंदर कोई कैंप में जाके या महाकुंभ में जाके भंडारा भंडारा कर दो ठीक है। तो कुछ इस तरह की, ये बहुत इजी एक्टिविटी है ना, वॉलंटियरिंग। तो इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, अगर सपोज आपने वॉलंटियरी की है आई डोनेशन कैंप में, तो आई के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, तो ठीक है, कम से कम यू विल हैव समथिंग टू डू। कमांड नहीं, कमांड नहीं है इसमें, बस आपको पढ़ के, हाँ, पूरा इंटरव्यू नहीं चलेगा इस पे, डिपेंडिंग है ना। तो मतलब आपको मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं, आपको देखना है कि आपको क्या चूज करना है। कुकिंग पे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कुकिंग तो बहुत अच्छा है। देखो, कुकिंग राजस्थानी क्यूजिन आ गया ना, वॉलंटियरिंग फॉर एलिवेशन ऑफ हंगर विद NGO, ये कुकिंग और वॉलंटियरिंग बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं। और स्कूल में डाल दो हेड बॉय या कोई स्टूडेंट काउंसिल का वो ट्रेजरा वेजरा कोई सर्टिफिकेट चेक नहीं होगा, लेकिन कम से कम यू विल हैव समथिंग टू टॉक। और ये स्टूडेंट काउंसिल के हेड हैं, इससे कुछ क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे आपके, लेकिन ये कम से कम ब्लैंक फिल नहीं होगा, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको बता रहा हूँ मैं। बस ये पूछेंगे विच लीडरशिप स्किल यू लर्नड, तो आप बता देना, आपके पास तो लीडरशिप का पूरा चैप्टर ही है ना आप तो स्टूडेंट की, है ना। रिसीव्ड स्कॉलरशिप, प्लेइंग बैडमिंटन, पार्टनरशिप हेड ऑफ NGO, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट सफिशिएंट एग्जाम्पल्स। ये देखिए, रैंक 17 इन इंटरमीडिएट CA एग्जाम, हेड ऑफ ऑडिट कमेटी, एमर्जिंग कंपनीज, ये भी एक अच्छा है, एनालाइजिंग एंड इन्वेस्टिंग इन एमर्जिंग कंपनीज। और टीचिंग भी, अगर आपने स्कूल में या अपने मोहल्ले पड़ोस के बच्चों को पढ़ाया हो तो डाल सकते हो। टीचिंग इज ए गुड एक्टिविटी। तो टीचिंग में आपको एजुकेशन सेक्टर प्रिपेयर करना पड़ेगा, बस एजुकेशन पॉलिसी, टीचिंग से क्या फायदा होता है, ऑनलाइन टीचिंग, ये वो बहुत ही प्रोडक्टेबल है, बहुत ही ईजी है। तो टीचिंग इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टिविटी। तो टीचिंग, वॉलंटियरिंग, कुकिंग,
है ना, हेड बॉय हेड गर्ल, वो तो खैर तभी डालोगे जब आप रहे होगे, लेकिन कुछ और कमेटी वमिटी का नाम डाल सकते हो आप। मैं यहाँ पे आपको डिसऑनेस्ट होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्रिएटिव होने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, ये डी यू का है, एसआरसीसी है ना, ये देखो, ये एसआरसीसी किसका है ये, कुकिंग इंडियन क्विजीन। अगर आपको कोई स्पेशल हो, या ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग फ्रॉम नेचर, वेरी इजी। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो पार्क वार्क घूमने का, तो ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग फ्रॉम नेचर। ये देखो, ये तो काफी स्पेसिफिक हो गया। टीम लीडर ऑफ ऑडिट टीम अंडर ड्यूरिंग सीए इंटर्नशिप, ये भी डाल सकते हो जो सीए बैकग्राउंड वाले लोग हैं ना, या इवन नॉन सीए वाले भी हैं। अगर आप स्कूल वगैरह, कॉलेज में, मतलब कॉलेज में आपने इंटर्नशिप वगैरह की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए वगैरह में, तो ये बहुत आसानी से आ सकता है। मिल गया एक पॉइंट। ये देखो, हाँ बाहर भी करो तो कोई इशू नहीं है, मतलब स्कूल कॉलेज से संबंधित होना चाहिए। अगर बाहर किया है तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर में डालो उसको। अगर कॉलेज के बाहर किया है तो एक्स्ट्रा करिकुलर में है ना, वहां तो कुछ भी डाल सकते हो। यहां पर आपकी रेस्ट्रिक्शन है स्कूल कॉलेज की, यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्स्ट्रा करिकुलर की, ठीक है। एंकरिंग एंड इलोक्यूशन, चैंटिंग एंड विजिटिंग टेम्पल्स, अगर कोई आप धार्मिक प्रवृत्ति की हो तो ये डाल सकते हो। ये देखिए, ये देखो, ये देखते पता चल जाता है, ये पक्का डीयू का होगा, ये भी एसआरसीसी का है, रिपीट हो गया आई थिंक ये तो। ठीक है जी, तो आई थिंक इनफ एग्जांपल्स। अगर आपको और चाहिए बता देना, मेरे पास कम से कम 500 लोगों के हैं, बट उतना जरूरत नहीं है आपको। आई हैव गिवन यू सफिशिएंट आइडिया। हाँ पीडीएफ शेयर मैं कर दूंगा इसको। वो चेक करना पड़ेगा, शायद हो जानी चाहिए। एक बार फॉर्म चेक, वो नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा। हाँ लेकिन अभी से देखो, अभी से मान के चलो कि चेंज नहीं होने वाले हैं, थोड़ा टाइम लगाओ, 1-2 घंटे का हो जाएगा। मुझे चेक करा लेना, मुझे भेज देना, मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है। ये देखो सब डी वाले हैं, सब पूरा भर भर के देखो ये। ये कौन है, ये तो पूरा एकदम फुल है, इसको देख के डर लग रहा है मुझे तो। कनाडा, यूके का नाम भी लिखा हुआ है इसमें, हॉकी इंडिया, मीडिया, कौन है ये महान विभूति कौन आ गई यहाँ पे, आई एम रोहतक। टीचिंग एंड सेवा एट गुरुद्वारा, ये भी कर सकते हो, टीचिंग एंड सेवा। मैंने बताया ना, महाकुंभ में जाओ और सेवा विवा करके आओ। वॉचिंग हिस्ट्री बेस्ड मूवीज, नेचर बेस्ड वॉकिंग, है ना, ये कर सकते हो। बहुत जनरल चीजें हैं, मतलब ये। अगर आप कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हो तो लिसनिंग एंड सिंगिंग किशोर कुमार सॉन्ग्स। हाँ, अगर लिसनिंग आप किसी पार्टिकुलर उसकी करते हो ना, प्ले सिंगर की, हाँ उस पर क्वेश्चन बनेंगे। नहीं सुना हो तो मत लिखो। हाँ नहीं नहीं, मैंने बोला ना सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है उनको। अभी देखो भांगड़ा, ये भी इनकी एक्टिविटी है। बास्केटबॉल एंड भांगड़ा। हाँ तो इसमें यहाँ पर भी है भांगड़ा इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन, तो इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसे उन्होंने ऐसे नहीं लिखा कि जबरदस्ती लिख दिया हो। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट सफिशिएंट आइडिया। एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिन लोगों ने स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए सेशन ज्वाइन किया था वो बता दीजिए, कोई आपकी क्वेरी हो तो बताइए, सो दैट वी कैन कंप्लीट टुडेस डिस्कशन ऑन दिस डेफ। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास। स्पोर्ट्स ऑब्लिक एनसीसी, हाँ एनसीसी में अगर आपने मेंबरशिप ली हुई है, कोई कैंप अटेंड किया है, कुछ भी, आरएसएस वगैरह अवॉइड कीजिएगा। एनसीसी इज ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस इज एनजीओ काइंड ऑफ, तो आप एनजीओ भी लिख सकते हैं उसको।
और कुछ खास नहीं है सर। आई डेंट फिल इट हॉबीज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वुड इट क्रिएट ए प्रॉब्लम? मतलब फॉर्म भर के सबमिट भी कर दिया? अंशिका होगी, तुम्हें कैसे पता? सर डू वी नीड टू ऐड ऑल सब्जेक्ट्स नेम ड्यूरिंग कॉलेज टाइम और कैन वी जस्ट मेंशन कॉमर्स? ऑल सब्जेक्ट नेम जितने भी आ सके ना। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में आप जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो वहां पर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम भी आएगा उसमें। हाँ, तो ग्रेजुएशन, टेंथ, ट्वेल्थ, हाँ, तो वहां पर सारे सब्जेक्ट मेंशन कीजिए और ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो पहले लिखो। कॉलेज में 24 सब्जेक्ट हैं, उसमें जो आपके आपके फेवरेबल सब्जेक्ट हो वो लिखो ना उसमें, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनेंगे फिर। अगर आप टैक्सेशन में अच्छे हो, टैक्सेशन लिखो पहले, इस तरह से, है ना। सर पार्ट टू तो एडिट नहीं हो पा रहा, पार्ट टू एडिट नहीं हो रहा। सर शुड आई फिल हेड ऑफ गर्ल्स इन स्कूल? अगर आप हेड ऑफ गर्ल्स रही हो तो भरो, नहीं हो तो मत भरो। हेड ऑफ गर्ल, हेड गर्ल, ये कह रही है हेड ऑफ गर्ल तो हेड गर्ल। सर रही हो तो भरो, फिर इसमें डरना क्या है? फिर तो भरना है। सर इन एजुकेशन ऑल 6 सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10 एंड 12 विल बी कंसिडर्ड फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन? हाँ जी, ऑल 6 सब्जेक्ट, यस, ऑल 6 सब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। लेकिन अगेन देर इज नो इम्पैक्ट ऑन योर इंटरव्यू और ऑन योर सिलेक्शन, ठीक है। तो यहां पे जो सच्चाई है वो भरो, बस जो मार्कशीट में दी हुई है ना वो भरनी है आपको, ठीक है। देखो एक पर्पस और भी है इस बार कि ये लोग डेटा जो है वो आई थिंक जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा उनका डेटा भी ये कंपनीज को शेयर करेंगे। तो अगर सपोज आपने मेंस दिया और मेंस में आपका चलो क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर क्वालिफाई होगा तो इंटरव्यू देने जाओगे आप, तब भी आपका डेटा शेयर होगा कंपनी के साथ में। और अगर नहीं आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपका मेंस लेकिन मेंस भी क्लियर नहीं हुआ है लेकिन प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो हो सकता है कि ये आपसे कंसेंट मांगे कि इफ यू वांट वी कैन शेयर योर डेटा विद द कंपनीज। तो कंपनीज आपको हो सकता है हायर कर ले, मतलब यू आर बेटर देन ए ग्रेजुएट, बिकॉज आपने ग्रेजुएट के बाद भी 1-2 साल यहाँ पे लगा दिए। तो कंपनी को तो फ्री के मतलब फ्री की ट्रेंड लोग मिल जाएंगे ना। तो धीरे धीरे मतलब ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मतलब ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ताकि लोग यूपीएससी को एज ए बर्डन लेके ना चलें। सर नेक्स्ट ईयर वापस ओटीआर ऑडिट कर सकते हैं? हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर सब कुछ एडिट कर सकते हो, अपने नाम के अलावा, डेट ऑफ बर्थ के अलावा, बेसिक डिटेल्स के अलावा, बाकी सब सर्विस प्रेफरेंस चेंज कर दो, हॉबी चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? कैन वी कंप्लीट दिस सेशन? आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू एवरीवन, ओके। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन व्हाट्सएप मी, ओके, आई विल आंसर। सर इस बार ब्लैंक के रहने दो, हॉबीज वाला सेक्शन। क्यों ब्लैंक कर रही है? उसको फिलअप कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? ट्राई करो, हो जाएगा अभी तो। फॉर्म सेकंड टाइम भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या उसमें? एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, 7 days, हाँ, अभी फॉर्म फिलअप कर दो और आफ्टर क्लोजर ऑफ द फॉर्म फिलिंग डेट वंस अगेन यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एडिट इट फॉर 7 days। तो उस समय आप उसको एडिट कर लेना, ठीक है।
I have doubt in job preference, IPS or IFS. Discuss with me separately one to one. IPS और IFS. तो IFS का मतलब है कि अगर आपको फॉरेन कंट्री में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो IFS में जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पुलिस में सर्व करना है तो पुलिस वाला फिर IPS है ही। और अभी इतना ज़्यादा मत सोचो, प्रीलिम से फोकस करो ठीक है। बाद में भी एडिट हो जाएंगी सर्विस प्रेफरेंस अगले अगले 6 महीने सोचते रहो IPS या IFS अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। ठीक है जी, कैन वी कंप्लीट दिस सेशन? कैन वी स्टार्ट द क्लास? यस, नो, से समथिंग। कितने लोगों ने अभी फॉर्म खोल के भी नहीं देखा? कितने लोगों ने अभी फॉर्म को टच भी नहीं किया? लेजी पर्सन। कल पूरा हैंग हो गई होगी ना, कल ज्यादा प्रेशर रहा होगा।